पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से 29 सितंबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। वैश्विक व्यापार महाकुंभ का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए बैठक। सीएम योगी ने कहा, समाज की आधार शक्ति है। कृष्ण जन्मभूमि शाहीगाह मस्जिद विवाद का पूरा मामला। आज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की हर सड़क बेहतर बनाएं। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का मामला। इंस्पेक्टर राजेश मौर्य आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इस मामले में अब 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सीधे रुख करते हैं ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए हैं। दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी विश्वास है सीधी तस्वीरें कि यह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रथम संस्करण की तर्ज पर एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उत्तर प्रदेश के को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफल होगा। पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। के उद्घाटन के दौरान संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और संबोधन में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों का जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए। तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। एमएसएमई में यूपी में बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। साथ ही एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया, इस बात का भी जिक्र किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबोधन के दौरान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इन अहम बातों का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। State of the Union is blossoming and flourishing under his dynamic governance. Yogi ji has turned out to be a game changer for this state, and that will help the nation. I am particularly amazed at his 24/7 watchdog governance. Equally important personality on the dais, Sri Jitan Ram Manji ji, a former chief minister, a cabinet minister for micro, small and medium enterprises, Government of India. His thinking is very sharp. He is on record saying, and I appreciate that, small, micro and medium, the nomenclature doesn't define them. They drive big engine. They are the spinal force. And his discourse to us was illuminating. Under his dynamic leadership, this sector will grow exponentially in the entire nation. Sri Nand Gopal Gupta Nandi ji, Honorable Minister of Industrial Development, Promotion, NRI Investment Promotion, Government of Uttar Pradesh, Sri Rajasthan ji, Honorable Minister of MSME, Khadi and Village Industries, Agriculture Industries, Handloom
and Textile Government of Uttar Pradesh, he gave us a graphic account. I was watching his passion. He was narrating the achievements and also giving his expectations for the future. His heart and soul is in the job. Honorable members of Parliament, Dr. Mahesh Sharma ji, Shri Surendra Nagar ji, Honorable Ministers, Excellencies, and distinguished audience. Personally, for me, this is an absolute delight to the inaugural ceremony of the second edition of UP International Trade Show 2024. I had the good occasion to go around for myself. There could not be a greater assurance for a man like me that all is well, things are in right track. What I witnessed was beyond my concept, imagination and dream. I felt I was in the most developed country in the world. This is India very well thought out platform that not only showcases what is in India in Uttar Pradesh, it affords an opportunity for people to snatch those opportunities, to be in touch with the best minds, the artisans, the skilled workers, the products, and personally flourish. My congratulations to the Honorable Chief Minister for being so thoughtful, far-sighted, and practical. The beginning was made for the first edition by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. And in this context, it is my absolute privilege to be part of the second one. We are indeed very happy. तो इस कार्यक्रम का हिस्सा और जगदीप धनखड़ ने कई अहम बातों का जिक्र किया कि एक बेहतर कुशल नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही है और वो तमाम योजनाएं बखूबी पहुंचाई जा रही हैं, यानी कि तारीफ करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ की। बढ़ते आगे, फतेहपुर से अहम खबर सामने आ रही है। ट्रेन से कटकर 9वीं के छात्र की मौत हो गई है। सुबह टहलते वक्त ये हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को उससे पहले ये अहम खबर सामने आ रही है। आगरा से अहम खबर, बीजेपी सांसद कंगना रनौत मामले में आज सुनवाई है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई। आगरा के अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने याचिका दायर की थी। कंगना ने किसान धरने को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका को लेकर सुनवाई है। तो फिलहाल सुनवाई में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। कंगना ने किसान के धरना प्रदर्शन को लेकर बयान दिया था। तो कृषि कानून को लेकर जो बयान कंगना रनौत के द्वारा दिया गया, उस पर हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई और इसी मामले को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। खरगे ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई इस बयान को लेकर जो याचिका दायर की गई थी। कृषि कानून पर अपने शब्दों को वापस लेती हूं, कंगना रनौत ने सफाई भी दी।
अजेंद्र चौहान इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजेंद्र, क्या अपडेट है, क्योंकि कंगना रनौत ने जो बयान दिया उसकी निंदा भी हुई और अब उसे सीधे सीधे विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिला है और आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी है। देखिए, जिस तरह से कंगना रनौत का जो एक बयान के बाद तमाम विवाद हुआ, किसानों के धरने को लेकर जो विवादास्पद बयान दिया था, उसी के चलते एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और आगरा के अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने ये याचिका डाली थी और उसके चलते उसी याचिका में आज सुनवाई है। फिलहाल जिस तरह से ये विवादास्पद जो बयान सांसद कंगना रनौत का था, उसके बाद तमाम सियासत गरमाई थी और उसके चलते ही एक जो वकील है, अधिवक्ता है आगरा में, उन्होंने एक वाद दायर किया, उस वाद में आज सुनवाई होनी है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। जो बयान कंगना रनौत ने दिया, काले कृषि कानून लागू करने की बात हो रही है, खरगे ने इस पर पलटवार भी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है और चुनाव में किसान इसका जवाब देंगे, इस बयान को चुनाव से भी जोड़ते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, सीतापुर जिले में एक बार फिर मटमैला गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। पैसे न देने पर 2 युवकों की हत्या करने की धमकी दी गई है। गांव के बाहर गैंग ने एक पोस्टर भी चस्पा किया है। गांव के ही परशुराम और सनी देओल का नाम लिखा गया है। 3 लाख तो फिलहाल पोस्टर चिपकाए गए हैं इस मामले को लेकर और 3 लाख नहीं देने पर युवकों को मार डालने के लिए बात लिखी गई है। तो पोस्टर चिपका मिलने से गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रामाभारी गांव का ये मामला सामने आ रहा है। इस सुबह कौन सी लिस्ट? एक खंभे पे चपकी थी गगन चौहान वाली। क्या उसमें लिखा था? उसमें लिखा था परशुराम चमार, सनी देओल चमार और 3 लाख रुपया और मारने की धमकी दिए 3 दिन बाद। किसके द्वारा ये धमकी दी गई? गगन चौहान के तरफ। ये गगन चौहान कौन है? ये गगन चौहान एक मटमैला गैंग के हैं। उसमें क्या दिखाया गया कि 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए और नहीं तो 3 दिन के बाद मौत। तो इस घटना क्रम को लेकर दहशत का माहौल और सुरक्षा व्यवस्था अभी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। दीपक गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। दीपक, देखा जाए तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये जो चस्पा किया गया है पोस्टर और लिखा गया है, इससे एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दीपक, कौन है ये शख्स जो इस तरीके से धमकी भरा पोस्टर चस्पा किया गया इनके द्वारा? इस को लेकर कोई जांच पड़ताल की गई प्रशासनिक स्तर पर? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो 2 शख्स के नाम शामिल किए गए हैं और धमकी दी गई है इस पोस्टर के जरिए कि 3 लाख ना दे पाने पर गांव के बाहर गैंग ने ये चिपकाया और ये किसने चिपकाया इसको लेकर अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस पोस्टर चिपकाने के बाद, चस्पा करने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो 2 युवकों की हत्या करने की धमकी दी गई है, इसमें लिखा भी गया है। तो ये गैंग कौन सा है? गांव के ही परशुराम और सनी देओल का नाम इस पर लिखा गया है। ये 2 शख्स हैं इस गांव के। दीपक गुप्ता संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपक, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? ये गैंग कौन है और किस नियत से ये धमकी भरा पोस्टर चस्पा किया गया है? ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट? मैं आपको
जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के तकरीबन 7 से 8 गांव में अभी तक इस तरह के पोस्टर चिपकाने की वारदात सामने आई है, जहां पर पोस्टर चिपकाने के बाद एक गांव में चोरी की घटना को भी यह बदमाश अंजाम दे जाते हैं। ऐसे में हाईटेक सीतापुर की पुलिस इस मटमैला गैंग के सामने घुटने टेकते नजर आ रही है। अभी तक तकरीबन महीनों से इस तरह के पोस्टर अलग अलग गाँव में चिपकाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ना तो पोस्टर चिपकाने वाले किसी को हिरासत में ले पाई है और ना ही पोस्टर चिपकाने वालों को ट्रेस कर पाई है। दीपक, लगभग कितना वक्त हो गया है और ये मटमैला गैंग जो है इसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इस तरीके से दहशत फैलाने का काम इस गैंग के द्वारा किया जा रहा है। जी, सीतापुर जनपद में जब पहली बार इस तरह का पोस्टर किसी गांव में लगाया गया था तो सीतापुर पुलिस ने एक बयान जारी किया था कि यह शरारती तत्व का काम है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उस गांव में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम देकर इस जो ये पोस्टर लगाया गया था इसको सही साबित कर दिया था। अब जाकर पुलिस पोस्टर को गंभीरता से ले रही है। लगातार इस पोस्टर को लेकर के जिन गाँव में पोस्टर लगाए जा रहे हैं वहाँ कॉम्बिंग बढ़ा दी है, लगातार गश्त बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ पोस्टर चिपकाने वालों की तलाश के लिए भी पुलिस टीमें सर्विलांस की सहायता ले रही है। जी, शुक्रिया दीपक इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये मटमैला गैंग है जिसने ये पोस्टर चस्पा किया है और दहशत फैलाने का काम इस गैंग के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। फतेहपुर से अहम खबर, ट्रेन से कटकर 9वीं के छात्र की मौत हो गई है। सुबह टहलते वक्त ये हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रमवा स्टेशन के हरगनपुर रेलवे लाइन की ये घटना बताई जा रही है। रमवा स्टेशन का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर रेलवे ट्रैक में कटकर 9वीं के छात्र की मौत हो गई। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर सौंपा गया ज्ञापन और सपा छात्र सभा ने जिलाधिकारी को ये ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में छात्र छात्राओं के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और फीस वृद्धि और कानून व्यवस्था के मुद्दे से संबंधित ये ज्ञापन सौंपा गया। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो खत्म कर दिया, नौजवान जो छात्र संघ अध्यक्ष बनते थे और राजनीति में आते थे आगे, और जो फीस वृद्धि सबसे बड़ा काम है। गरीब परिवारों से जो आते हैं लोग, उनकी फीस वृद्धि लेके हम लोगों का ज्ञापन है कि फीस कम करी जाए और छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। उत्तर प्रदेश की जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उसको लेकर हमारा ज्ञापन है। आए दिन जो सरकारें रोज पेपर लीक करने का काम करती हैं, युवा हताश हैं। आज युवाएं, उत्तर प्रदेश का युवा हत्या कर रहा है। बस इस चीज़ को लेकर हमारा ज्ञापन है। डीएम साहब को हम लोगों ने भी ज्ञापन देने का काम किया है। ये आज समाजवादी छात्र सभा की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में एक ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समाजवादी छात्र सभा ने विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है और हॉस्टलों की जो फीस बढ़ाई जा रही है और छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर अपनी मांगें राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत में ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बचा। आवारा सांड के ट्रेन के सामने आने से यह हादसा होने से बचा है। लोगों ने रेस्क्यू कर सांड को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला और दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे ट्रेन के घंटों पहिए जाम रहे। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, यानी कि
रेल हादसों की भरमार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि कई रेल से सामने आए। हादसा होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप, घंटों रेल यातायात जो है बाधित रहा और लोगों को इस बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बिनौली फाटक के निकट का ये मामला बताया जा रहा है। जी हाँ, सांड था जी, और सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ रही थी और उसके नीचे सांड आ गया जी। वो उसकी मौत हो गई और जी 1-1.5 घंटा ट्रेन रुकी रही और लोगों को बहुत वो परेशानी उठानी पड़ी जी। कैसे निकालना भैया? निकाला गया जी, बस गाड़ी रुकी रही भाई, इधर से इधर करा पब्लिक ने, इधर साइड में। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।